Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial, and this tutorial is based on methods to solve pair of linear equations, and today I'm going to discuss 3.2 of your NCERT. So guys, I'm just hoping that you have watched my previous video that is based on 3.1, and that video is the basic of, or you can say introduction of pair of linear equations in two variables. So those who have not watched that video, kindly watch firstly that video and then this video. Okay, so guys, today I'm going to discuss the methods to solve a pair of linear equations. So let's start the topic. Methods. See, we have many methods to solve a pair of linear equations, and your chapter number 3 is totally based upon that only. And this chapter is very important because this would help you to solve equations always in class 11th and 12th, and when you will be in college. Okay, so we have two kind of method. First is graphical method. As per the name suggests, here we will draw few graphs, and the second is algebraic method. Okay, so guys, as per the name suggests, graphical method, कुछ नहीं करना है. Graphical method में we'll read out the question, we'll form the equations, and we'll take one graph paper and we'll draw that two equations in this graph paper. We'll plot x and y axis and we'll draw that two equations, two pair of lines. Okay, so 3.2 is all about graphical method. Okay, what about the algebraic method? We have three algebraic method to solve a pair of linear equations. The first one is substitution method. Okay, and the second is elimination method. ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग. एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ओके, सो दीज थ्री मेथड्स कम्स अंडर एल्जेब्रिक मेथड्स. व्हाई सो? इसमें हमको किसी भी टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. विल हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स बाय यूजिंग विच विल सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो ये वाला जो है आपके 3.3 में गिवन है, दिस इज in 3.4 and this is in 3.5. So we have seen the all overview, the airplane view of the chapter number 3. 3.1 was the basic introductory part, 3.2 will be the graphical method, and 3.4 to 5 will be substitution, elimination and cross multiplication method. So guys, today I'm going to start the graphical method 3.2. So let's start the question number 2. अच्छा, एक बात बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बुक में देखेंगे तो काफी कुछ चीजें वहां पे दी गई है. तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिस्कस करने से पहले आई नीड टू टेल यू फ्यू थियरीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थियरी. So in the last video I have told you that the standard format of pair of linear equations are a1x plus of b1y plus of c1 is equals to 0, a2x plus of b2y plus of c2 is equals to 0, where a1, b1, c1 are the constants. Similarly, a2, b2, c2 are the constant. These are the subscripts. ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है वो 2 और वो जो 1 है. ओके, तो we can take any example, right? 5x plus 3y minus of 1 is equals to 0. This is one linear equation. Similarly, I can write 6x plus of 4y plus of 8 is equals to 0. This is the another linear equation. ठीक है, तो you can randomly take any linear equations, but before going to the graphical method, we first need to understand कि क्या मैम ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम, मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ किए, क्या हम ये नहीं बता सकते कि लाइंस का नेचर कैसा होगा? I mean, आपको दो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट? अगर आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप मेरे को बताइए कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं. व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रॉइंग दैट टू लाइंस, आई मीन द नेचर ऑफ द लाइंस. सपोज करते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ. सो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. ओके, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? मे बी द लाइंस आर लाइक दिस. ठीक है, कुछ नहीं, स्क्यू लाइंस है. ठीक है, दूसरा, मे बी दिस इज लाइन 1, द अनदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट लाइन. ओके, द थर्ड वन इज मे बी one line is like this and the second line is like this. It means they can be parallel. Or one more thing, maybe one line is this and the other line is overlapping the same line. It means the coincident lines. It means we have many possibilities. It means we will have many possibilities while drawing the
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो अगर हमारे पास में ग्राफिकल मेथड है तो हम तो तुरंत ग्राफ ड्रॉ करके समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसी लाइंस मेरी बनेंगी। लेकिन अगर आपके पास में ग्राफिकल मेथड नहीं है या है भी और आपको बिना ड्रॉ किए ये बताना है कि what will be the nature of the lines, it means they will parallel, intersecting, coincident, what, so we need to check the ratios. We have one table which we will draw here and मेरे साथ आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, and after comparing the ratios we'll come to the conclusion that lines will represent which kind of nature. Okay, so here we will discuss it. Ratios of what? Ratios of these constants. Okay, so guys हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं रेशियोज को। किन रेशियोज को कंपेयर करना है मुझे? ये A1 B1 वाले को। सबसे पहले नंबर पे अगर इफ A1 by A2 is not equals to B1 by B2, this is my first condition. Whenever you will have any question and you'll try to compare the ratios, and if you will find this condition, then this kind of situation represents intersecting lines. Which kind of lines? Intersecting lines. Okay, which kind of line? Intersecting lines. अब अगर मैं आप लोग को एक रफ फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो लाइंस विल बी लाइक दिस। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी लाइन ऐसी होगी। इट इज L1, इट इज L2, इट इज इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। ओके, अब बोला उसने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? विल गेट यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कहने का मतलब है वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशंस? वन सोल्यूशंस। ओके, आप लोग मेरे साथ में नोट करते चलिए। आपका आ रहा है पार्ट टू में विल डिस्कस कि वो कैसे दिखेगा आपका नेक्स्ट वाला लाइन। ठीक है, विल अगेन कंपेयर द रेशियोज। सपोज वी आर कंपेयरिंग द रेशियोज एंड वी आर गेटिंग the condition like this: A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. It means all the three ratios are same. So whenever I'll get this kind of condition, the lines will be coincident lines. ठीक है, अब बताइए मुझे coincident lines कैसे दिखाई देंगी? coincidence line होंगी आपके पास में, यहाँ पे मैं एक्सिस बना रही हूँ पहले। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मेरी एक लाइन ऐसी है, मैंने रैंडम एक लाइन बनाया है ऐसा, ठीक है, ये लाइन है। सो माई सेकेंड लाइन विल बी लाइक दिस ओनली, इसी के ऊपर में। ठीक है, तो यू कैन सी गाइज हियर इन दिस टू लाइन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है ना, एक किसी पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट हियर यू कैन सी द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट मेनी पॉइंट्स because they are overlapped, they are one upon another, right? So this kind of lines will have many solutions. कैसे होंगे ये? It will have many solutions, और इसमें आप बोल सकते हैं infinite solutions। क्या बोलेंगे आप इसको? Infinite solutions. Get it? This is the second condition. Okay, one more ratio. See, इसको कहाँ पे लिखा जाए? यहाँ पे टॉप में लिखो, इसको रब करके। आई एम राइटिंग द थर्ड कंडीशन। ये इसी लाइंस के लिए चेक हो रहा है। ठीक है, आई एम राइटिंग द थर्ड कंडीशन इन द टॉप। यहां पे देखिए आप, कंडीशन नंबर 3, when A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but it is not equals to C1 upon C2, C1 upon C2। तो गाइज आप इस बात को समझिए कि हमारे पास में दो लाइंस हो गई हैं, एक इंटरसेक्टिंग भी, दूसरी कौन सी? कोइंसिडेंट भी। अब कौन सी बची? पैरेलल लाइंस। कौन सी बची? पैरेलल लाइंस। तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इस टाइप के रेशियो में? द लाइंस विल बी पैरेलल। हाउ पैरेलल लाइंस लुक लाइक्स? आप देखिए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। पैरेलल लाइंस कहने का मतलब है, सपोज इफ माई फर्स्ट लाइन इज लाइक दिस L1, देन माई सेकेंड लाइन विल बी पैरेलल टू इट। It means the inclination of line 1 and line 2 from the x-axis will be same whenever the lines will satisfy this condition. Okay, so what is the algebraic representation? It means किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है that whatever the variables we are using, like हम अभी कौन से वेरिएबल्स यूज करते हैं? x और y वेरिएबल यूज करते हैं, तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन कहने का मतलब है यहाँ पे x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी। गेट इट? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस कहने का मतलब है कि x की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी और y की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नाउ टेल मी, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, विल दे मीट एट एनी पॉइंट?
No, they are parallel, they will never meet each other, right? Or you can say they will meet at infinity where we cannot look into. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? The algebraic representation of this line is how many solutions are possible? No. How many solutions are possible? No solutions. No solutions are possible. No solutions. Okay, so this is a table which is very important. The third point will be just beneath of it, since I have no spaces inside my board, that's why I have written it at the top. Okay, so guys, we have seen all three conditions, and these conditions are very important. One more thing I want to add with this table, that whenever I'll get the solution of any line, there is few different terminologies, that is consistency and inconsistency. Okay, the lines will give you any solution will be the consistent pair of lines, and the lines which will not give you any solution, that will be the inconsistent pair of lines. So you can see here that if lines are after comparing the ratio, they are satisfying this condition, so they will give the unique solution. It means you will have a solution. So this kind of line will be the consistent pair of lines. Consistent pair of lines, इसको भी आप नोट करेंगे साथ में, consistent pair of lines. ओके, एंड मैंने बोला कि दोज नॉट गिव एनी सॉल्यूशंस, जैसे कि अपना पैरेलल वाला, तो ये वाली लाइंस कैसे होंगी? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं बट यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट तो है, बट दिस काइंड ऑफ कैटेगरी कम्स अंडर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लाइंस. ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कीजिए. लेट्स स्टार्ट 3.2. ओके गाइस, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 लिया है. व्हाई नॉट क्वेश्चन नंबर 1? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इज ऑल अबाउट checking the ratios and finding out the solution without drawing the graph. Okay, after that let's discuss question number 1, 6, 5, 7. Okay, so look at here guys. The question number 2 is after comparing the ratio, when you go to your book, after comparing the ratio, it means आपको a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 इसको कंपेयर करना है, and check the lines are intersecting, parallel or coincident. Okay, so I have taken question number 2 and 3 of your question number 2. So let's start doing solution. So guys, you can very well see this is my a1, this is my b1, this is my c1. Okay, this is my a2, b2 and c2. If I'll draw the solution, if I'll try to make the solution, so a1 upon a2 is 9 by 18, that is 1 by 2. b1 upon b2 is 3 by 6, is also 1 by 2. And c1 upon c2 is 12 by 24, that is also 1 by 2. So you can see guys, all three ratios are same, right? This implies a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. और ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सी कंडीशन है हमारी? बताइए, देख के बताइए आप लोग अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं तो बता दूंगी आप लोग को. आप लोग 2 मिनट अपनी कॉपी को देखिए, जो आप लोगों ने नोट किया है, ये जो आपकी तीनों जो आपके रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, तो आपको बिना ड्रॉ किए ये पता चल गया दैट अगर मैं एक लाइन बनाऊंगी तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर ही बनेगी. ठीक है, तो हमको बताना था कि इंटरसेक्टिंग या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 के रेशियोज को चेक करके दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट. ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. ये मेरे ख्याल से आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका. ठीक है, हम इसको हटाते हैं. देखिए आप, ये वाला क्लोथ कितना गंदा हो गया, बट बोर्ड जो है वो डस्टर से नहीं रब हो रहा है, जो डस्टर मेरे पास है, इसलिए आई एम यूजिंग द क्लोथ. इनके कारण से वो ब्लैक हो गया है. अगेन ये वाला क्वेश्चन देखिए आप. हियर 6 by 2, a1 by a2 will be 3 by 1. 2 1s are 2 3s are. Okay, now it is -3 by -1. It is also 3 by 1. And the c1 by c2, that is 10 by 9. Okay, so you can very well see that
here implies that a1 by a2 is equals to b1 by b2. मैं इसके लिए सोल्यूशन कर रही हूँ ना, a1 by a2 is equals to b1 by b2, but it is not equals to c1 by c2 because it is 3 by 1, it is also 3 by 1, but it is 10 by 9. Okay, so this is the condition of parallel lines. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, this pair of equations will be parallel lines. Okay, तो आप देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग द रेशियो वी कैन इजीली से दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल. फाइन, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई एम गोइंग टू रब दिस सॉल्यूशन. ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3? मैं क्वेश्चन नंबर 2 को रब भी कर दे रही हूँ सो दैट आई विल हैव स्पेस टू सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है. क्या बताना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. व्हेन यू गो थ्रू योर बुक यू विल सी दैट आफ्टर कंपेयरिंग द रेशियो टेल अस दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ऐसा ही आपका क्वेश्चन है. तो आप क्या करेंगे, इट इज योर a1 b1 c1 a2 b2 c2. अब आप बोलोगे मैम जब इक्वल्स टू के बगल में रहता है तब भी आप उसको c1 बोल देते हो, और अगर ये ऐसा होता है 2x + 3y माइनस ऑफ 5 = 0 तब भी आप इसको c1 बोल देते हो. कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में है तो सेकंड वाला इक्वेशन भी ऐसा ही होना चाहिए. मतलब आपका ये जो सी वाला पार्ट है वो इस तरफ होना चाहिए, किधर, लेफ्ट वाले साइड में. तो आप इसी जो भी साइन इसके पास में उसके साथ में उसको c1 लिखेंगे. बट व्हाट अबाउट अगर वो इक्वल्स टू के इधर है तो देखिए आप इस वाले इक्वेशन में भी और इसमें भी, दोनों में आपका ये जो c है वो आफ्टर इक्वल्स टू है. तो दैट इज ऑफ नो इशू. आप जहां पे भी वो c प्लेस्ड है बस उसको आप ये चेक कीजिए कि दोनों ही इक्वेशन में उसकी प्लेसिंग कॉमन होनी चाहिए. मतलब अगर वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में है तो दोनों में आपका c लेफ्ट साइड होना चाहिए, और अगर प्लेसिंग उसकी राइट साइड है तो दोनों में प्लेसिंग का होनी चाहिए, राइट साइड में होनी चाहिए. ओके, सो गाइज यू कैन वेरी वेल सी दैट हियर a1 is 3 by 2, b1 is 5 by 3 and c1 is 7 and c1 is 7. What about this? a2 is 9, b2 is 10. Wrong, -10. Why so -10? Just because of आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो a2x प्लस ऑफ b2y इज इक्वल्स टू c2 या प्लस ऑफ c2 इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप के फॉर्मेट में दिखाई देता है. तो सारे जो साइंस रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं. तो आप जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ये माइनस आपको लिखना होगा. ठीक है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है. एंड c2 इज हाउ मच, 14. ठीक है, कंपेयर कीजिए रेशियो को. a1 by a2 मतलब 3 by 2 upon 9 विल बी 3 by 18 विल बी 1 by 6. ये 2 और 9 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. तो आपका a1 by a2 कितना आ गया, आप ऐसे लिख सकते हैं a1 by a2 इज 1 by 6. What about b1 by b2? It is 5 by 3 upon minus of 10, that is 5 by minus of 30 मतलब -1 by 6. तो आपको शुरू में ही दिख गया that 1 by 6 is not equals to -1 by 6. आप बोलोगे मैम नंबर्स तो सेम है, बट वो जो माइनस साइन है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना. ठीक है, तो बिफोर चेकिंग मतलब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है c1 by c2. यू इजिली सी दैट a1 upon a2 एंड b1 upon b2 आर नॉट इक्वल. इसका मतलब ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस के यूनिक सोल्यूशन होते हैं, और जिनके सोल्यूशंस होते हैं वो लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती है. क्या होती है, कंसिस्टेंट. तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, दिस आर द पेयर ऑफ लाइन विच आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन का ये है. ओके, ये क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब वन लाइन लाइक दिस, अदर लाइक दिस, एंड यहाँ पे उनका कुछ सोल्यूशन होगा, कुछ यूनिक सोल्यूशन हमको मिलेगा, और जिनका यूनिक सोल्यूशन है या जिनके सोल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो गाइज ये भी बहुत ही आसान था, इसको भी रब करते हैं, इसको चेक करते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल है. 3.2 में कुछ चीजें जो है आपका 2, 3, 4 बहुत ही सिंपल है. इसके बाद मैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 लगाऊंगी, और आपके 7th के लिए आप लोगों को वो दे दूंगी, हिंट दे दूंगी. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फटाफट चेक कीजिए. 5 by -10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 by 2, एंड फिर है -3 by 6, ये भी कितना हो जाएगा, -1 by 2, एंड द लास्ट वन इज 11 by -22, ये भी -1 by 2. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. चेक इट, आपको दिख रहा है a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2. सो इट इज कंसिस्टेंट लाइन. ठीक है ना, कंसिस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन.
दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, जहां पे आपके पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो मैंने बोला है जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल है दोज लाइंस आर कंसिस्टेंट, बट ये कैटेगरी में आता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के। किसके? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी वाला। ओके, सो आई एम रबिंग दिस ऑल्सो। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है काइंडली मेक कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप मेरी ईमेल आईडी में अपने डाउट्स मेरे को शेयर कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? चेक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। पहले आपको कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है बताना है, और इफ कंसिस्टेंट, इफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूं यहां पे, देखिए x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10. Guys, let's compare the ratios. First one will be 1 by 2. It is also 1 by 2. It is 5 by 10. It is 1 by 2 also. Okay. So these three are same. It means A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. Right. So this is coincident line. Coincident lines. ठीक है. Many solutions. And आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट है। कैसा है? कंसिस्टेंट है। कैसी कंसिस्टेंसी रहती है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। तो उसने बोला है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब जैसा अपन ने 3.1 में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यू कैन सी फॉर द फर्स्ट वन x विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ y, और यू कैन राइट फॉर द फर्स्ट वन y विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ x. So I'm making one table over here. I'm putting few value of x. Suppose I'm putting 3, 4 and 5. Let's see what will be the answers. अगर आपने यहाँ पे 3 रखा so you will get y as 2. अगर आपने यहाँ पे 4 रखा you will get 1. अगर आपने यहाँ पे 5 रखा you will get 0. This is the table for first equation. This is the table for first equation. What about the second equation? What about the second equation? Second equation is फिर से मैं इसको ट्रांसफर करके लिख रही हूँ 2y is equals to 10 minus of 2x. So y will be equals to 10 minus of 2x upon 2. I'm again drawing one table for equation number 2. ठीक है, ये सोल्यूशन चल रहा है आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन, फोर्थ के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का. अगेन आई एम टेकिंग द सेम वैल्यूज ऑफ x 3, 4 and 5. When you will put 3 over here, this will be 10 minus of 6. 10 minus of 6 will give you 4. 4 upon 2 will give you 2. Okay. When you will put x is equals to 4, then it will be 10 minus of 8. कैसे हो जाएगा ये? 10 minus of 8 upon 2 मतलब 4 upon 2 will give you, sorry, 2 upon 2 will give you 1. And when you will put 5 over here in the place of x, this will be 2 into 5, it means 10. So 10 minus of 10 will be 0. So 0 by 2. 0 by 2 will give you 0. So I have drawn the two tables for equation number 1 and equation number 2. Now it's time to make this table, make this solution graphically. ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड. ठीक है, आप क्या कीजिए, अपना ग्राफ पेपर लीजिए, एक्स वाई एक्सिस बनाइए. ठीक है, आई एम रैंडमली टेकिंग फ्यू पॉइंट्स बिकॉज आई डू नॉट हैव ग्राफ पेपर इनसाइड माय बोर्ड. ठीक है, सो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5 एंड सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5. ठीक, अगर आप कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेकर के चेक करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज. आई हैव नॉट टेकन नेगेटिव वैल्यूज, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यू कैन श्योरली टेक. ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब हम सिर्फ यहाँ पे पोजिशनिंग करेंगे, लोकेट करेंगे. सो आई एम फर्स्ट लोकेटिंग दिस लाइन. when x is equals to 3, when x is equals to 3, y is equals to 2. So one point will come here, 3 पे 2. When x is equals to 4, y is equals to 1. When x is equals to 4, y is equals to 1. So one point will be here. And when x is equals to 5, y will be 0. So one point will be here. So you can see I'm drawing one line like this. This is my first line. This is my first line. Again for the second table. सेम चीज है, आप देख रहे हैं कि ये वाले टेबल में जो वैल्यूज मिली है सेम वैल्यू मुझे यहाँ पे भी मिली है. तो एक सेम लाइन और वहीं पे ड्रॉ होगी क्योंकि ये कैसी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइन थी. वन लाइन उसके ऊपर में दूसरी लाइन. ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, एक लाइन और बना देंगे इसी के ऊपर में और एरो बना देंगे विच इज रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंड लाइन.
दैट्स इट। तो जब भी कोई आपका पेपर चेक कर रहा होगा या आप अपनी कॉपी में अपनी टीचर से चेक करवा रहे होंगे, सो दीज टू एरो विल रिप्रेजेंट कि एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आप लोग ये वाला करके देखिएगा कि क्या ये कंसिस्टेंट है। वैसे अपन चेक कर लेते हैं। 2/4 विल बी 1/2, -2 by -4 will also be 1/2 and 2/5 मतलब -2 by -5 will be 2/5। तो you can see these two are equal but this is not equals। तो ये कौन सी कंडीशन है? This is the condition of what? Parallel lines। This is the condition of parallel lines where A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। तो ये कौन सी लाइन है आपकी? पैरेलल लाइन है। एंड पैरेलल लाइन का नो सोल्यूशन, इसलिए वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो ये वाला जो है ये आपका इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो आपको किसी भी टाइप का सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। हमने बैक टू बैक 2, 3, 4 देख लिया कैसे होता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। गाइज ये जो क्वेश्चंस हमने देखे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे कि हमको रेशियोज कंपेयर करना था और जस्ट रेशियो कंपेयर करके चेक करना था दैट द व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी विल हैव एंड जो भी लाइन्स है वो कैसी दिखाई दे रही हैं। बट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 आर क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसा होता है उस टाइप का है वो। और इसमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास में यहाँ पे है। आप लोग स्क्रीन में टॉप में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, टॉप में या फिर बॉटम में, जहाँ पे भी फ्लैश कर रहा है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्क्रीन से रीड कीजिए और मैं अपने लैपटॉप से और बुक भी सामने रखी उसे रीड करती हूँ। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ठीक है। इनसाइड द क्वेश्चन नंबर 1 देयर इज 2 क्वेश्चन। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 of 1, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz। Okay, how many students? 10 students। मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि जब भी आप इस चैप्टर को बना रहे होंगे तो आप रीड करते जाइए क्वेश्चंस को और साथ में इक्वेशंस भी बनाते जाइए, ठीक है। एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। नंबर ऑफ गर्ल्स इज was, will be, always implies equals to। Okay, number of girls is 4 more than number of boys। मतलब नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं उससे 4 ज्यादा, 4 प्लस में है कौन? नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। आप देखिए स्क्रीन में, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स ने क्या किया है, इस क्विज में पार्ट किया है। तो गाइज लेट्स हैव, आई एम टेकिंग let number of girls are x and number of boys are y। क्योंकि आपको पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं या ये क्वेश्चन कभी भी रैंडमली आता है, आपको बॉयज और गर्ल्स की संख्या नहीं गिवन है कि कितने बच्चे हैं वहां पे, वो नहीं गिवन है, टोटल गिवन है और एक रिलेटिव क्वांटिटी गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स को रिलेट कर दिया नंबर ऑफ बॉयज से, 4 ज्यादा है करके, ठीक है। तो जो चीजें हमको नहीं पता होती है उनको हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर एक्स, नंबर ऑफ बॉयज आर वाई, ये हमने लेट किया खुद से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्टेप्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 students took part in the quiz। Okay, so x plus y is equals to 10। This is my equation number 1। Because जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स और जितने भी नंबर ऑफ बॉयज है दोनों को मिला कर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। Who those part in the quiz। Okay, now नंबर ऑफ गर्ल्स x है, प्लस क्या हमने 4 किया, प्लस ऑफ नंबर ऑफ बॉयज किया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या कर दिया है, इक्वेशन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इक्वेशन को राइट करने के बाद हमको इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, y इज इक्वल टू, हमने लिखा 10 माइनस ऑफ x, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 डैश के, क्योंकि इसके लिए मैं टेबल बनाऊंगी। एंड फिर से मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 4 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, x माइनस ऑफ 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 का डैश है, ठीक है। डैश करने का मतलब है उसी का एक जस्ट उसके बाद वाला स्टेप, ठीक है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसके लिए टेबल बना रही हूँ। सो यू नो x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो आई एम टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ x एंड अकॉर्डिंगली आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिया, सपोज मैंने 6 लिया, तो आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो यू विल गेट 4 एज वैल्यू ऑफ y।
सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिया, यू विल गेट 3, और अगर मैंने 5 लिया तो यू विल गेट 5. ठीक है. सिमिलरली आई एम taking few value of x over here, and parallelly I'll get the value of y. X is my independent variable, that's why it will always be upside in the table. ठीक है. Now take any value of x. So if I'll take value of x as 5, you will get y as 1. 5 minus of 4. 5 minus of 4 as 1. If I'll take 6, it will be 2. If I will take 7, it will be 3. ओके. तो वन थिंग मैंने देख लिया है कि एक पॉइंट कॉमन है और वही आंसर में आएगा. मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बट अभी सिंस आप लोग के लिए काफी नया है, आप इतनी जल्दी जज नहीं कर पाएंगे. आपने देखा जब मैंने x की वैल्यू को 7 लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया. आपने इस इक्वेशन में भी देखा कि जब मैंने x की वैल्यू को 7 लिया तो y कितना आ गया, 3 आ गया. तो डेफिनेटली वही मेरा सोल्यूशन होने वाला है. ठीक है. बट क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना रही हूँ, आप लोग अपने ग्राफ पेपर में बनाएंगे. किसमें, ग्राफ पेपर में. ठीक है. मैंने x की 7 तक वैल्यू ली है और y तो 5 तक गया. ठीक है. तो पॉसिबल है, ये मैंने x लिया, ये y लिया, ये x डैश और ये y डैश. आप कभी किसी किसी इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यू रख के भी पुट किया करिए, है ना, सो दैट you'll have better understanding. ठीक है. तो ये हो गया मेरा 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 5, it is 6, it is 7, it is 8. You know, sometimes हो सकता है कि मेरा जो लाइन है वो तिरछा हो जाए. ठीक है, क्योंकि मैंने एक रैंडम स्पेसिंग लिया हुआ है. ठीक है. बट आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो you'll get the good spacing and you'll get the fine figure. ठीक है. एंड ये ले लिया हमने 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. I'm trying to draw this graph. Firstly I'm drawing the first table. ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन. तो when x is 6, y is equals to 4. When x is 6, y is equals to 4. So my point will be here somewhere. Here. Okay. When x is 7, y is equals to 3. When x is 7, y is equals to 3. So this will be somewhere here. Okay. And when 5, then 5. तो ये हो जाएगा आपका यहाँ कहीं पे. ठीक है. तो अगर मैंने देखा, ये मैंने लाइन बनाया, देखो मैंने बोला था थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाए तो प्लीज कंसीडर इट. ठीक है. तो ये हो गया आपका लाइन 1. ये क्या हो गया आपका लाइन 1. दिस इज माई लाइन 1 और इक्वेशन नंबर 1. नाउ द सेकेंड वन. When x is equals to 5, y is equals to 1. When x is equals to 5, y is equals to 1. So the point will be here. See, मैं इसको क्या कर रही हूँ, ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाए दोनों के बीच का. ठीक है. 5 है, x की वैल्यू तो y 1 है. जब x की वैल्यू 2 है तो y, x की वैल्यू 6 है तो y कितना है, 2 है. तो यहाँ कहीं पे ये हो जाएगा. एंड जब x की वैल्यू 7 है तो y 3 है. तो एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा. मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, एक ब्लू के लिए भी और एक ब्लैक के लिए भी. तो आपने देखा मेरा जो दूसरा लाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो यू कैन सी दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. ये कौन सा पॉइंट है, 7,3. एंड यही मेरा आंसर है. ठीक है. तो सिर्फ आंसर लिख देंगे क्या, 7,3? नहीं यार, हमको आंसर में वो पॉइंट थोड़ी ना बताने बोला था. हमको बोला था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन द क्विज. ठीक है. तो आपने देखा कि जब भी ये हमारा आंसर आया, कितना आया है, 7,3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y. जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है. ठीक है. तो हमने x को किससे रिप्रेजेंट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट करी हैं, 7 पार्टिसिपेट करी हैं. और कितने नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट किए हैं, 3 नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट किए हैं. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा. 10 पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे क्विज में. एंड आपने देखा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा होना चाहिए, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से. तो यू कैन सी नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. सो गाइस, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1. एंड अब आप लोग का ये काम है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के पास में इस 3.2 के अंदर में है. आप क्वेश्चन नंबर 5 बना के देखिए, 6 बनाइए, 7 बनाइए. अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिए. जितने भी टाइप की मैंने वैरायटी इस वीडियो में कंप्लीट करी है, उन सारी वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास में 3.2 में है. So guys, bye for now, and we'll meet in the next video tutorial of mine which will be based on 3.3. and आप मेरा 3.1 जरूर देखिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, because the period is of lockdown period. Students are staying at home. तो अगर आप जितना उसको शेयर करेंगे ये बेनिफिट करेगा. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, share my video and subscribe to my channel.